بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک الگ موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں آپ کو ایک پوسٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے اس پوسٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ آج میری اس ویڈیو میں میرے استاد جناب فخری صاحب اور میرے ایک عزیز دوست نوح خان گلریز رضا رضوی بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں تقریباً 4 سے 5 سال سے اس فتنے کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں۔ بہت چاہا کہ یہ بات منظر عام پر آئے۔ اگر آپ اس پوسٹ کو غور سے آپ نے پڑھا ہوگا تو نوح خانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا کے سارے نوح خان حضرات جو ہیں وہ صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو کسی نوح خان سے کوئی دقت ہو، اور ہر شخصیت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن مجھے اس پوسٹ سے دقت یہی ہے کہ اس پوسٹ میں سبھی نوح خانوں کی بات ہوئی ہے کہ افسوس کہ نوح خانوں کا دھندا نہ چلے گا۔ نوح خان کسی پرٹیکولر کسی نوح خان کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ جو بھی لوگ ہیں ان کا مقصد کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک بات جو شاید کبھی منظر عام پر نہیں آئی، حالانکہ غیر ضروری ہے لیکن اب ضروری ہو گئی ہے کہ وہ بات منظر عام پر آئے۔ محرم سے قبل یہ فتنے میں 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاص لوگ، ایک خاص جو کمیونٹی، الگ طریقے کے لوگ جو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے میں نہیں جانتا، لیکن آج میں ان کو کچھ جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس جواب میں میرے ساتھ جناب فخری صاحب اور گلریز رضا رضوی بھی جڑیں گے۔ میں بیچ میں ان سے بھی وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے اپنے استاد محترم جناب فخری میرٹی صاحب کے خیالات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ فخری صاحب کو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم السلام علیکم۔ میں عزاداری پروڈکشن کے حوالے سے ایک 2 منٹ کی بڑی اہم گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ محرم سے پہلے اکثر ہمارے ہی معاشرے سے کچھ لوگ نوح خانوں اور ذاکرین پہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں گویا محرم نہیں آیا بلکہ ان لوگوں کے لیے کوئی کاروباری سیزن آ گیا۔ تو میں اس طریقے کی تمام پوسٹوں کی جو سوشل میڈیا پہ نوح خانوں اور ذاکرین کو کاروباری انداز میں پیش کرتی ہیں، میں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں، کیونکہ کتنے لوگ نوح خانوں کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، کتنے لوگ ذاکرین کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، کتنے لوگ شعراء کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے انہیں۔ وہ نوح خان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ ایک نوحہ تیار کرنے کے لیے کتنے شعراء سے رابطہ کرتا ہے، کتنے وقت میں دھن بناتا ہے، کس طریقے سے اس کمپوزیشن کو لاتا ہے، کس طریقے سے اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے، کس طریقے سے اس کی شوٹنگ کرتا ہے، منظر عام پہ لاتا ہے، اور کس کیفیت سے وہ اس نوحے کو پڑھنے کے لیے کسی شب بیداری یا کسی مجلس میں پہنچتا ہے۔ ان تمام حالات کے پیچھے وہ کتنے مسائل سے گزرتا ہے، اس کو کبھی دیکھا ہے ان لوگوں نے؟ میں نے دیکھا ہے۔ میں خورشید عصری سے لے کے دانش میرٹی، ہمایوں تابش، احسن منگلوری، گلریز چھولسی، محفوظ سلطان پوری اور اس طریقے کے تمام نوح خانوں سے واقف ہوں جو دن رات محنت کر کے نوحے تیار کرتے ہیں، اور میری نظر میں کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے پیسے طے کیے ہوں کہ صاحب ہم اتنے پیسے لیں گے پھر پڑھیں گے۔ میں فخری میرٹی اعلان کرتا ہوں
आज़ादारी प्रोडक्शन चैनल के हवाले से कि कोई आए और बताए कि कभी फ़खरी मेहटी ने मौला का जिक्र करने के लिए किसी से पैसे मांगे हों। तो मैं कौम के नाम, अपने नौजवानों के, अपने बुज़ुर्गों के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरीके की अगर कोई पोस्ट आपके सामने, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे आती है तो उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे शेयर ना करें, बल्कि भेजने वाले को वापस भेज के कहें कि आइंदा इस तरीके की पोस्ट आप हमारे ग्रुप पे या हमारे मोबाइल पे भेजने की कोशिश ना करें। ये बेहुदा पोस्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत। सलामुन अलैकुम। तो आपने फ़खरी साहब के ख़यालात को सुन लिया। अब मैं अपनी बात आपके सामने आगे रखता हूँ, उसके बाद मैं बीच में गुलरेज़ रज़ा रिज़वी की वीडियो भी आपके सामने रखूँगा। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या जानते हैं आप नौए ख़ानों के बारे में। 2003 से 4 से मंजराम पे मैं नौए ख़ानी कर रहा हूँ। मैं अपनी बात ही लेकर चलता हूँ, हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, लेकिन मैं अपने से ही लेकर चलता हूँ। और फ़खरी साहब भी मेरी तायद करेंगे, और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो मेरी तायद करेंगे। अब तो खैर बहुत आसान हो गया है हर चीज़ अपनी बात को कह देना, लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था, कैसे कैसे हम लोग शायरों के राब्ते में आते थे फ़ोन से। फ़ोन बहुत महंगे हुआ करते थे। उसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिस्ट, अब फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, पाकिस्तान से भी अब रिकॉर्डिंग हो जाती है। उस ज़माने में दिल्ली में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी या लखनऊ में हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर नौए ख़ान हज़रात, जो मेरे साथ के नौए ख़ान हज़रात हैं जिन्होंने मेरे साथ नौए ख़ानी शुरू करी, वो मेरी तायद करेंगे कि दिल्ली में हम रिकॉर्डिंग करने जाया करते थे। किन मुश्किलात से हम जाया करते थे पूरी टीम को लेकर। ये मातम भी उस ज़माने में हाथ से हुआ करता था, फिर आया मातम की ट्रैक आए, पूरी एक टीम हुआ करती थी। उसके बाद वीडियो के बहुत ताम झाम होते हैं, फिर पूरे एक मेहनत को फेस करने के बाद एक नोहा मंजर आम पर आता है। उसके बाद भी नौए ख़ान तरसता कि कैसे कैसे वो सामाइन तक पहुंच जाए, वो पुरसा कबूल हो जाए, शहज़ादी पुरसा कबूल कर लें। उस मेहनत को वो लोग नहीं जानते। बस एक पोस्ट बनाई और डाल दी कि अब नौए ख़ानों का धंधा ना चलेगा। क्या सबूत है, क्या लाते हैं वो लोग? कुछ सबूत है उनके पास कि वो ये कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग के नौए ख़ानों ने पैसे मांगे। बड़ी मुश्किलों से गुजरता है एक नौए ख़ान। उसकी ज़िंदगी पर अगर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो मैं इंशाल्लाह, हालांकि मैं सोचता हूँ कि मैं बनाऊँगा एक डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वो लोग नहीं जानते, सिर्फ पोस्ट करना जानते हैं। अब रुक के अपने दोस्त गुलरेज़ रज़ा रिज़वी के ख़यालात आपके सामने पेश करता हूँ। आप देखिए वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक चैलेंज चल रहा है ज़ाकिरीन के ख़िलाफ़ बोलने का। ज़्यादातर उसमें नौए ख़ानों को टारगेट किया जा रहा है कि नौए ख़ान हज़रात डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं, तो ये सच्चे अज़ादार नहीं हैं। तमाम नौए ख़ानों पर अंगुश्त नुमाई करने वाले साहब, अगर नौए ख़ान सच्चे अज़ादार नहीं हैं तो आप अपने अज़ादार होने की दलील पेश करें। आप तो मजलिस मातम में जाते ही इसलिए हैं ताकि आप देख सकें कि इस मजलिस में, इन शब्बेदारियों में नौए ख़ान जो आए हुए हैं, इनके लिफाफे में कितना पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है। अरे मेरे भाई, नौए ख़ानों की झोली तो फ़र्ज़ तक की झोली भरने वाले इमाम के सदक़े में भर जाती है, लेकिन आप तो फ़र्श अज़ा से मिलने वाले सवाब से भी महरूम रह जाते हैं, क्योंकि आपकी फ़िक्र ने आपको हसद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आपको फ़र्श अज़ा पर आने के बावजूद भी सवाब नहीं मिल पाता। मेरे भाई, नौए ख़ान को बुलाने वाला बुला रहा है, मजलिस मातम शब्बेदारी करा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, हस्बे हैसियत वो नौए ख़ान हज़रात को उनका तबर्रुक भी दे रहा है। उससे आपको क्या परेशानी है? क्योंकि जो नौए ख़ान हज़रात को बुला रहा है, पैसे दे रहा है तबर्रुक बतौर, वो तो इस तरह की बेहुदा हरकतें करेंगे नहीं सोशल मीडिया पर कि नौए ख़ान हज़रात पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो खुद बुला रहे हैं। तो आपको क्या परेशानी होती है मेरे भाई? खुदारा ज़ाकिरीन पर
अंगुष्ठ नुमाई करने से गुरेज करें और अपने नफ्स की इस्लाह करें। दस्ता गुजारिश है मेरे भाई, सोशल मीडिया पर वाहियात बातों से गुरेज करें। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम सच्चे मुहिब्बान हुसैन इब्न अली हैं, हम लोग लिफाफे की तमन्ना नहीं करते। फ़कत वस्सलाम। तो नाज़रीन, आपने गुलरेज़ रिज़वी को भी सुना। कुछ चंद लोग हैं जो ये फितना फैलाते हैं, और मुझे अफसोस उन पर नहीं है, अफसोस सिर्फ उन लोगों पर है जो वो आम लोग, वो मौला के अज़ादार, वो सामीन जो इस पोस्ट को बिना पढ़े, बिना कुछ तस्दीक किए, कुछ जाने बस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरी दरख्वास्त है ऐसी पोस्टों को ना आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप ही ज़ाकरीन को आप भी बुलाते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको लगे कि इस तरह के ज़ाकरीन, चाहे वो हमारे उलमाए कराम हों, चाहे वो शायर अहले बैत हों, चाहे वो मनक़बत ख्वाह हों, अगर आपको लगता है ऐसे लोग जो जिन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को एक वाकई एक तिजारत बना रखा है, तो आप ऐसे लोगों को ना बुलाएं। लेकिन आप सबको ऐसी बात नहीं कह सकते। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि इस फितने को दबाइए। इस तरह की पोस्ट कभी भी आपके सामने आए तो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। आपको शहज़ादी का वास्ता। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।